quickly. Spoken English, whenever we talk about this term, सबसे बड़ी बात है कि why is it important to learn spoken English? Why is it important? Right. It is important for certain reasons. The first reason is career growth. Yes, English speaking people earn 35% extra income as compared to non-speaking spoken people, right? Non-English speaking people, right? I beg your pardon, right? So if you really want to earn 35% extra income, you really got to master this very language. Second point, we have to gain more confidence. If you really want to gain more confidence, definitely English is going to help you, right? Third one we talk about is global exposure. If we really need global exposure, definitely we need to master spoken English, right? Better we become in English, more growth is coming our way, definitely, right? Next one is higher studies. Is it possible to go for higher studies without command over English language? It's not possible at all, right? The next one is higher studies. राइट, हायर स्टडीज हम क्लियर कर चुके हैं. इसके बाद हमारा आता है वॉच मूवीज. कैन यू वॉच मूवीज विदाउट सबटाइटल? इफ नॉट, इफ यू कैन कमांड आवर इंग्लिश लैंग्वेज, डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू लाइक वॉच ऑल दोज मूवीज विदाउट सबटाइटल. बट इन सबसे जरूरी जो मैक्सिमम सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे नजर आता है वो ये कि यू कैन रीड दोज बुक्स विच आर ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश. देयर आर सर्टेन पावरफुल बुक्स विद लॉट्स ऑफ पावरफुल कंटेंट that is available in English only. So you cannot read those books if you are not good at English. It is very important for you people to master this very language, right? The next one is what are the challenges. मैं आज बात करूंगा कि कौन कौन से challenges हमें आते हैं when we talk about spoken English, right? सबसे पहला चैलेंज मैंने देखा है बहुत सालों से, फॉर लास्ट 15 years I have been training people on spoken English and people say sir lack of environment, we do not have proper environment, that's why we fail to speak English. हमारे नेबर में, रिलेटिव्स में, पेरेंट्स कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है ऐसा. सो हाउ कैन वी मास्टर इट? Let me tell you one wonderful thing. I was also not having that kind of an environment in my life at early stage of yes. So today I'm going to elaborate. Today I'm going to tell you people that how can you master English language without having that environment around you, or how can you create the environment. See, people say if opportunity doesn't knock, create the door. अगर माहौल नहीं है, environment नहीं है, it's your responsibility. You will create the environment, right? Second, vocab. कहा भी जाता है your English is directly proportionate to your English. Your English is directly proportionate to your vocabulary. जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी vocab है उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंग्लिश होगी. It's very important for you people, right? Next is grammar. हमें नहीं आती, टेंसेस में मैं वीक हूं, मैंने 6th क्लास से इंग्लिश को सीखना शुरू किया था. इस तरह की प्रॉब्लम भी लोग अक्सर बोलते हैं कि ग्रामर में बहुत वीक हूं. तो आज आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है ग्रामर को लेकर के भी. हेजिटेशन बहुत बड़ा फैक्टर है. लोग कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल तो लेता हूं, आती भी है, बट जब बड़े लेवल पे बोलने की बात आती है, कोई पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है, तो ड्यू टू हेजिटेशन आई फेल टू स्पीक, राइट? इसके अलावा लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम है मदर टंग इन्फ्लुएंस्ड. At different part of the country, people use different accent, right? So MTI, mother tongue influence, is also one of the problem people are facing, and lack of time. Sir, हम चाहते हैं इंग्लिश को इंप्रूव करना, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता. आजकल तो खैर ये बहाना आपका बिल्कुल नहीं चल सकता कि we do not have time, राइट? टाइम का बहाना आपका बिल्कुल नहीं चलेगा. यू हैव एम्पल टाइम दीज डेज. पूरे लॉकडाउन में 500 से ज्यादा लोगों को हमने पब्लिक स्पीकिंग सिखाया है. उन्होंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज किया. हमारी कैंपेन में भी आपने देखा होगा, हमने बार बार बोला है कि वो स्किल जो आप सोच रहे हैं मुझे सीखनी है, आपके कॉम्पिटिटर जो फ्यूचर में आपको कंपटीशन देने वाले हैं, वो लोग उन स्किल्स को पहले ही सीख चुके हैं. इस लॉकडाउन में काफी लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है और अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग बना लिया है. नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है, राइट? देखिए कैसे ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले आज के सेशन में हम बात करेंगे लर्न हाउ टू लर्न. पहले सीखिए कि किसी चीज को सीखते कैसे हैं. क्या बोला? सीखिए किसी चीज को सीखते कैसे हैं. यहां मैं बात नहीं कर रहा स्पोकन इंग्लिश की, यहां मैं बात कर रहा हूं हर उस चीज की जो जीवन में आपको सीखनी है. There are so many things in our life which we really want to learn or which we have already learned.
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले से सीख चुके हैं और बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो हमें अभी भी सीखनी है। अगर आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, स्विमिंग सीखना चाहते हैं, ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग या फिर स्पीकिंग, राइट, कुछ भी सीखना है, सीखने का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, राइट, इट्स गोइंग टू बी द सेम। अब किस तरीके से आप सीख सकते हैं मैं आपको बताता हूं, राइट। देयर आर 3 पैटर्न्स, 3 पैटर्न मैं आपको दे रहा हूं जिनसे आप सीख सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑडिटरी पैटर्न, सेकंड वन इज विजुअल एंड थर्ड वन इज काइनेस्थेटिक। इनको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ऑडिटरी, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक 3 पैटर्न हैं जिनको डिटेल में हमें सीखना होगा। देखिए, फर्स्ट इज ऑडिटरी पैटर्न। ऑडिटरी पैटर्न में क्या है? ऑडिटरी पैटर्न में है कैन यू स्पीक इन संस्कृत, कैन यू स्पीक इन संस्कृत, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप मुझे बताइए, जरा आंसर कीजिए, क्या आप संस्कृत बोल सकते हैं? क्या आप संस्कृत बोल सकते हैं? राइट, आप कहेंगे नहीं सर संस्कृत तो हम नहीं बोल सकते, राइट। तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि आपको संस्कृत का कुछ पैटर्न मैं अभी बताता हूं, राइट। देखिए, क्या आप ये बोल सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? ये रहा, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हुआ है? हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः। कम ऑन, रिपीट विद मी, पूरा हम बोलेंगे, साथ में से पॉजिटिव एनर्जी भी जनरेट होती है। मेरे साथ जरा बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी ने बोला, एब्सोल्युटली। अभी जब आपने ये बोला तो आपने संस्कृत स्पीकिंग ही तो की है, और आपने किया क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको ये श्लोक जो संस्कृत में है ये सबको बोलना आता है, लेकिन कैसे? हाउ डिड यू लर्न इट? आपने ये कैसे सीखा? कैसे सीखा आपने ये श्लोक? हाँ, मॉर्निंग असेंबली में बहुत बार, प्रेयर में, मंदिर में, इधर उधर बहुत बार आपने बोला है मॉर्निंग में ओम भूर्भुवः। कितनी रिपीटेशन थी, कितनी बार सुना और कितनी बार बोला, सुना और बोला। रिपीटेशन विद ऑडिटरी पैटर्न, राइट। बार 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 सुनने से आपका ये पैटर्न कंफर्म हो गया और आज आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा, ऑडिटरी पैटर्न से अगर आप कोई चीज सीखते हैं, स्पेशली लैंग्वेज, तो उसके कुछ बेनिफिट होते हैं आपको। उसके क्या बेनिफिट होते हैं आज अभी बताऊंगा अभी आपको, राइट। इससे पहले हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा आप फिल इन द ब्लैंक एक मुझे भर के बताएं। फिल इन द ब्लैंक, राइट। मछली डैश की रानी है? आपके ऑप्शन है, मछली रूप की रानी है, मछली राजा की रानी है, मछली जल की रानी है, या मछली जंगल की रानी है। हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे ये क्या पूछ लिया, बड़ा आसान है। मछली जल की रानी है। कैसे पता आपको? आज से करीब 12, 15, 20 साल पहले, 25 साल पहले आपने ये सीखा था, मछली जल की रानी है, आज तक याद है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। मछली रूप की रानी नहीं बोलते, मछली जंगल की रानी नहीं बोलते, आप हमेशा बोलते हैं मछली जल की रानी है। क्यों? कैसे सीखा? बाय लिसनिंग इट अगेन एंड अगेन। बचपन में ये पोएम बहुत बार सुनी और ये याद हो गई हमें। और कैसे याद हुई? कुछ टाइम के लिए या लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए आपको ये याद रहेगी। अच्छा, अब देखिए, एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं। एक बार एक कौवा था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? एक बार एक कौवा था। सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को इंग्लिश आती है या नहीं आती है, इस लाइन की इंग्लिश सबको आती है। एक बार एक कौवा था, क्या इंग्लिश बनेगी? एक बार एक कौवा था, क्या इंग्लिश बनेगी? Once there was a crow। जी हाँ, क्या इंग्लिश बनेगी? Once there was a crow। क्या इंग्लिश बनेगी? Once, हाँ, अभी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है आपको, Once there was a crow। एक बार एक कौवा था। अब इसको क्या आप इसके अंदर मुझे ग्रामर बता सकते हैं? Once क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, क्या है? Nobody knows, है ना। कितने लोग हैं जो इसकी पूरी ग्रामर जानते हैं? वंस क्या है, देयर क्या है। अब देयर वैसे हम सीखते हैं वर्ड मीनिंग में, तो देयर का मतलब होता है वहां। अब यहां हमने वहां तो यूज किया ही नहीं, वहां एक कौवा थोड़ी बोला, हमने बोला एक बार एक कौवा था, वंस देयर वाज अ क्रो। तो विदाउट नोइंग द ग्रामर वी नो द इंग्लिश वर्जन। ग्रामर नहीं आती लेकिन इसके इंग्लिश जरूर आती है, एक बार एक कौवा था। कैसे सीखा? ये बहुत बार रिपीट हुआ था बचपन में, ये ऐसे आता था तो पहली लाइन से हम रटना शुरू कर देते थे। वंस देयर वाज अ क्रो इट वाज वेरी थर्स्टी। पहली 2-3 लाइन सबको आती होती हैं। विदाउट नोइंग ग्रामर यू स्टिल नो एक बार एक कौवा था कि इंग्लिश क्या बनेगी? वंस देयर वाज अ क्रो।
तो ये वो सब पैटर्न है जो ऑडिटरी पैटर्न, बार बार सुन करके रिपीट करके, सुन करके रिपीट करके, जो भी चीज जीवन में आपने सीखी है वो हमेशा आपको याद रहेगी, है ना, राइट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विजुअल पैटर्न की। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे ये जो शॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये किस गाने का हो सकता है? आपके ऑप्शन है हु लेट्स द डॉग्स आउट, सेकेंड ऑप्शन है हाँ लगावेलू जब लिपस्टिक, हाँ एक भोजपुरी गाना है ये, क्या ये उसका सीन है? या फिर हुड दबंग दबंग। डी ऑप्शन आपके पास है गजबन, हाँ बड़ा फेमस गाना है ये आजकल इस पार्ट में, तो खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, राइट, गजबन। या फिर ये गाना है तू लौंग ते में लाची, ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना है, ये यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज हैं लौंग लाची गाने के। क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गाना या सुना जाने वाला गाना कौन सा है? ये लौंग लाची। ई ऑप्शन जो आपका है यूट्यूब पे 1 बिलियन, पहला गाना है जिसपे 1 बिलियन व्यूज हैं, राइट। तो इनमें से कौन सा ये आप ऑप्शन चूज करेंगे इसके लिए, ए बी सी या डी? डेफिनेटली सी, आप इसमें सी चूज करने वाले हैं। आपको कैसे पता लगा कि ये जो विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हुड दबंग दबंग गाने के? क्योंकि टीवी में आपने बार 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 इसे देखा है। अब छोटा बच्चा भी ना घर में उसको बोले ना बेटा हुड दबंग पे डांस करो, वो कैसे करेगा? ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। क्यों, कैसे सीख लिया उसने? एक जनरल अगर मैं बात करूं डांस का सबसे कॉमन स्टेप क्या होगा डांस का, ये या फिर ये? Come on, this is the most common। देखा होगा आपने शादी में भी कई बार होता है, घर में पेरेंट्स हैं, कोई और बड़े लोग हैं, उनको बोला जाए आओ डांस करो, उनको डांस ज्यादा आता नहीं होता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट से होते हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसे करते हैं। हाउ डू दे नो कि ऐसे करना है? भाई विजुअलाइजिंग, चीजों को देख देख कर बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारी सेकंड सेंस यूज कर रहे हैं हम, आईज को। फर्स्ट में हमने यूज किया था ईयर को, ऑडिटरी पैटर्न था। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है काइनेस्थेटिक। थर्ड वन इज काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक क्या होता है? स्किन को यूज करना है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बोला जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जीवन में जिनको आप करके सीख सकते हैं। ऑडिटरी से बात बनेगी नहीं, विजुअल से बात बनेगी नहीं, उसको आपको करना ही पड़ेगा। लर्निंग बाय डूइंग। क्या बोला? लर्निंग बाय डूइंग। कितनी बार ऐसा देखिए, अगर मैं आपको एक क्लासरूम प्रोग्राम में या ऑनलाइन 1 साल का कोर्स कराऊं हाउ टू ड्राइव अ कार, सब कुछ सिखाया जाएगा आपको, एक एक चीज आपको सिखाई जाएगी, जिसमें आपको गियर चेंज करना सिखाया जाएगा, इंडिकेटर कैसे, आपको हर चीज, ये ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, ये ऐसे गियर आगे जाएगा पीछे जाएगा, सेकंड गियर, उसके बाद इधर मोड़ना है, ये करना है, ये वाइपर है, सब कुछ 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम कराते हैं आपको, हर रोज रिपीट भी कराएंगे। उसके बाद एक रिटन टेस्ट भी लेंगे, और रिटन टेस्ट में आपके मार्क्स भी 100 में से आप क्वालिफाई करेंगे 95, 98, हाँ 95, 98, 100 में से 100 भी हो सकता है आप स्कोर कर लें। लेकिन क्या आपको ड्राइविंग आ जाएगी? कैन यू ड्राइव अ कार? विल यू बिकम कॉन्फिडेंट टू ड्राइव अ कार? यू नो एवरीथिंग अबाउट ड्राइविंग बट यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। क्या बोला? यू नो एवरीथिंग अबाउट ड्राइविंग बट यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। व्हाई? बिकॉज ड्राइविंग के लिए काइनेस्थेटिक पैटर्न जरूरी है, और वो हमने किया नहीं। लर्निंग बाय डूइंग, थ्योरी सीखते रहे, सब कुछ सीखते रहे, राइट, उससे बात बनने वाली नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाता हूं, यहां क्या हो सकते हैं, जैसे स्विमिंग। कैन यू लर्न स्विमिंग थियोरेटिकली, सुन सुन के कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे हाथ पैर चलाना है, ऐसे करना है? कैन यू डू इट? आप मुझे बताइए, क्या आप स्विमिंग सीख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पता है क्या होता है, बहुत बार ऐसा है, लर्निंग बाय डूइंग, करने से ही आएगा। अब देखो ना, मान लीजिए मैं कहीं जाता हूं पूल में और स्विमिंग सीखना है मुझे, और मैं जा करके कोच को बोलता हूं मुझे स्विमिंग सिखाइए। अब कोच जो है पूल के अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद वो बोलते हैं कम इनसाइड द वाटर एंड वी वुड स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू करेंगे। अब मैं कहूं नहीं 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 नहीं, पहले मुझे स्विमिंग सिखाओ भाई, तब पानी में जाऊंगा, डूब गया तो? इज इट पॉसिबल कि मैं पूल में एंटर किए बिना बाहर ही स्विमिंग सीख लूं? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट आई नीड टू गो इनटू द वाटर, पहले पानी के अंदर जाना पड़ेगा, पूल के अंदर जाना पड़ेगा, तब मुझे स्विमिंग आएगी। देन ओनली आई कैन लर्न स्विमिंग। ये देख रहे हैं इमेज में भी आप, ये बच्चों को जो कोच सिखा रहे हैं, राइट?
हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट चाहिए, साइड से पकड़ लो, फिर इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, बट द थिंग इज लर्निंग बाय डूइंग। पहले पैर मार रहे हैं, फिर हाथ लगाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग। यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग without kinesthetic pattern. You cannot learn driving without kinesthetic pattern. In the same way, you cannot learn English without absolutely right. ठीक है, kinesthetic pattern. अब देखिए सवाल उठता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए होता है। काइनेस्थेटिक में बिल्कुल नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपने पिछले इमेज में भी देखा है हैंड होल्डिंग सपोर्ट था। जब साइकिलिंग आपने कभी सीखी थी लाइफ में तब क्या हुआ था? फर्स्ट इमेज में आपको दिखाई दे रहा है उधर, फर्स्ट इमेज में, हाँ पकड़ करके चला रहे हैं और साइकिल में पीछे देखिए तो सपोर्टिंग टायर भी लगे रहते हैं, राइट, ताकि आप गिरे नहीं। और धीरे 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 फिर आपको पकड़ के चलाते हैं और एक दिन आता है वो छोड़ देते हैं, आप काफी आगे निकल जाते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, हाँ मैं खुद चला के लाया हूं, वाह वंडरफुल, दैट गिव्स यू अमेजिंग फीलिंग। दैट इज द वे टू लर्न साइकिलिंग। देखिए स्टार्टिंग में क्या किया, हैंड होल्डिंग सपोर्ट था और बाद में एक बैकअप है, फिर भी कोई बात हो जाए तो बैकअप है लेकिन सपोर्ट नहीं है। बैकअप और सपोर्ट, देखिए बैकअप और सपोर्ट में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में आपको चाहिएगा सपोर्ट और बाद में आपको चाहिएगा बैकअप, और फिर इंडिविजुअली आप उस काम को कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो इन तीनों पैटर्न को आप कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश स्पीकिंग। First is auditory. You need to keep your mind in English zone for like 2.5 hours a day. 2 से 2.5 घंटे आपको अपने माइंड को इंग्लिश जोन में रखना ही होगा। जैसे पानी को कुछ देर आप फ्रीजर में रखते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाती है उसकी, यस आइस। इसी तरीके से इस माइंड को अगर आप इंग्लिश जोन में रखेंगे डेली 2 से 2.5 घंटे, तो ये जो इसके अंदर लैंग्वेज हिंदी है या आपकी अपनी जो भी लैंग्वेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंग्लिश में। You can easily speak English. Are you getting what I'm saying? अगर आप इस ब्रेन को रखेंगे इंग्लिश जोन में, you could easily speak English then. आप आसानी से फिर इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए एक तो इंग्लिश जोन में रखने के लिए ऑडिटरी पैटर्न कैसे रखें जी, ब्रेन को क्या मैं फ्रीजर में लगा दूं, इंग्लिश जोन क्या होता है, ये सारी बातें मुझे बताइए कि इंग्लिश जोन क्या होता है। देखिए इंग्लिश जोन होता है जहां अगर आपको कुछ सुनाई देगा तो इंग्लिश में सुनाई देगा। 2.5 घंटे का ऐसा पीरियड बना लीजिए दिन में कि आपके कान में कोई आवाज जाएगी तो इंग्लिश में जाएगी। अब आप कहोगे सर मेरे तो पड़ोस में, मेरे तो घर में, मेरे तो फ्रेंड्स, कोई भी तो इंग्लिश नहीं बोलता। नो प्रॉब्लम, आपके पास ईयरफोन तो है ना, फोन तो है आपका प्यारा दोस्त जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, है ना, तो उसमें आप ईयर प्लग्स लगाइए और वीडियो को देखिए, और कोई भी ऐसी वीडियो आप प्ले कर सकते हैं जहां इंग्लिश स्पीकिंग है, राइट। द स्पीकर इज यूजिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। डेफिनेटली 2 से 2.5 घंटे लगातार सुनिए, लगातार सुनिए, लगातार सुनिए, तो डेफिनेटली यू वुड बिकम गुड इन इंग्लिश। सेकंड जो आपको करना है वो करना है इंग्लिश की न्यूज या स्पोर्ट। कोई आपका फेवरेट जो भी गेम है, जो स्पोर्ट में आपका इंटरेस्ट है, वो स्पोर्ट या फिर इंग्लिश की न्यूज देखना बेहद जरूरी है। हाउ डिड आई लर्न? आई लर्न इट थ्रू सपोर्ट, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, आई वॉज वेरी मच इनटू क्रिकेट, राइट। बहुत ज्यादा मैंने क्रिकेट देखा, लेकिन सिर्फ देखा नहीं, मैंने साथ में सुना भी। विजुअल ऑडिटरी का कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन बन गया। विजुअल, मेरे सामने मैच चल रहा है और साथ के साथ मुझे कमेंट्री सुनाई दे रही है। एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं बार बार देता हूं, मान लीजिए एक वर्ड है मैग्निफिसेंट। नाउ वोकैब बिल्डिंग में थोड़ी सी बात करता हूं। एक वर्ड है मैग्निफिसेंट। अब इस वर्ड को मुझे नहीं पता क्या होता है मैग्निफिसेंट वर्ड, लेकिन चूंकि मैं क्रिकेट देख रहा हूं और वहां एक बैट्समैन ने शॉट लगाया, वो बाउंड्री जाती है, हाँ 4 रन, चौका मारा किसी ने, और उधर कमेंटर बोलता है मैग्निफिसेंट शॉट। फिर एक बॉलर ने बॉलिंग की कुछ देर बाद और उसको क्लीन बोल्ड कर दिया, उधर कमेंटेटर बोलता है कि मैग्निफिसेंट बॉलिंग। फिर एक शॉट लगाया गया, फील्डर ने डाइव लगा करके उसको रोक लिया, फिर कमेंटेटर बोलता है मैग्निफिसेंट पीस ऑफ फील्डिंग, राइट। तो ये सब क्या हुआ, मैग्निफिसेंट शॉट, मैग्निफिसेंट बॉलिंग, मैग्निफिसेंट फील्डिंग, और लास्ट में टीम जीत जाती है, बोलते हैं मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस बाय इंडिया, राइट। तो मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट हिंदी भले ही मुझे ना आती हो, लेकिन मैग्निफिसेंट का मतलब हुआ बेहतरीन, शानदार, एक्सीलेंट, कुछ भी टाइटल आप लगा लीजिए उधर, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई। अब आपने डिक्शनरी कंसल्ट नहीं की, आपके कोई मेंटर या कोच नहीं थे, राइट, ना आपने किसी से पूछा, ना डिक्शनरी में देखा, ना कोच, ना मेंटर, फिर भी आपको मैग्निफिसेंट वर्ड अब आता है, आपने उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली है। देखिए इस तरीके से अगर इंग्लिश को आप अप्रोच करेंगे
तो ही आएगी। अगर आप सोचते हैं ग्रामर की एक बुक खरीद लूं या रैपिडेक्स से खरीद लूं मार्केट से और ये डायलॉग रट लूं, तो क्षमा चाहता हूं, आपको कभी भी इंग्लिश नहीं आने वाली। राइट, तो सेकंड काम आपने क्या करना है, न्यूज एंड स्पोर्ट, आपको जो भी आपका फेवरेट है वो इंग्लिश में देखना है, और काइनेस्थेटिक के बिना तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा था ना, यू कैन नॉट लर्न ड्राइविंग विदाउट काइनेस्थेटिक पैटर्न, यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग विदाउट काइनेस्थेटिक पैटर्न, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश स्पीकिंग विदाउट काइनेस्थेटिक पैटर्न। अब करना क्या है, देखिए मैंने कहा लर्निंग बाय डूइंग, बोल क्या आएगी, अब बोलने क्या, मुझे तो आती नहीं इंग्लिश, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, हाउ कैन आई स्पीक, जब आती नहीं तो बोलूं क्या। वो तो वही बात होगी ना, जब मुझे ड्राइविंग आती नहीं तो मैं चलाऊं क्या, जब मुझे स्विमिंग आती नहीं तो मैं करूं क्या। ठीक ऐसे ही है, जितना जो भी आता है उतना बोलिए, थोड़ा बोलिए, या फिर जो आपने अभी अभी सुना उसको पॉज कर लो और उसी को बोल दीजिए। आप क्रिकेट देख रहे हैं ना, आपने एक डायलॉग सुना, व्हाट अ शॉट, कोई अच्छा बेहतरीन शॉट लगाया बैट्समैन ने, और आपने सुना व्हाट अ शॉट, तो आप क्या बोल दीजिए, तुरंत उसको पॉज कर लीजिए, सिर्फ इसी को रिपीट करो, व्हाट अ शॉट, बोली ना इंग्लिश आपने, व्हाट अ शॉट। अब आप कहेंगे सर व्हाट अ शॉट बोलने से काम थोड़ी चलेगा, नहीं नहीं नहीं, एम यू में लेटर ऑन आप जाएंगे, मैं कभी बताऊं आपको डिटेल में किसी अगले वेबिनार में, एम यू मल्टीपल यूज में अगर आप लेकर के जाएंगे तो बड़ा काम बनेगा। व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है ना, सेंस बिल्ड हो गई है, व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है। अब शॉट को रिप्लेस कर दो ना, कैसे, व्हाट अ फॉन, व्हाट अ फ्लावर, राइट, हाँ, व्हाट अ सीन, व्हाट अ कार, व्हाट अ बाइक, व्हाट अ परफॉर्मेंस। कितने डायलॉग हो गए, एक डायलॉग सीखा था व्हाट अ शॉट क्रिकेट से, और ऐसे 1000 डायलॉग बोलना शुरू कर दिया, वाटा 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 वाटा, कुछ भी लगा लो उसके आगे, व्हाट अ ड्रेस, राइट, व्हाट अ स्माइल, व्हाट अ पार्टी, व्हाट अ टेस्ट। कितनी चीजें बोल सकते हो, इसको बोलते हैं मल्टीपल यूज। एक चीज सीखिए 1000 जगह लगाइए, हम करते भी ऐसा ही है, एक चीज सीखिए 1000 जगह लगाइए, इंग्लिश अपने आप बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए इन 3 पैटर्न के बिना अगर आप सोच रहे हैं आपको इंग्लिश आ जाएगी, तो माफी चाहता हूं, ये आपकी गलत फहमी है। यू विल नेवर बिकम गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अब देखो होता भी क्या है, कई बार हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर भी इंग्लिश के टीचर पढ़ाते हैं। अब जब इंग्लिश के टीचर पढ़ाते हैं ना, दे टीच इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, और जब तक इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट सीखोगे बात बनेगी नहीं। राइट, अब मैं उस पर बात करने वाला हूं कि हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। राइट, एज अ सब्जेक्ट आप कैसे सीख सकते हैं और एज अ लैंग्वेज आप कैसे सीख सकते हैं। राइट, इसमें डिफरेंस पहले पता लगाइए कि एज अ लैंग्वेज और एज अ सब्जेक्ट। राइट, एज अ सब्जेक्ट जब आप सीखते हैं, देन यू लर्न द ट्रिक्स, क्या बोला, देन यू लर्न द ट्रिक्स, फिर आप ट्रिक्स सीखते हैं। और जब इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखते हैं, यू लर्न द ट्रेड, लर्न द ट्रिक्स एंड लर्न द ट्रेड। क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ट्रिक होती है तो बस फिट करना सीख लिया आपने। स्कूल में बता दीजिए मुझे, क्या हम ऐसे नहीं सीखते थे बहुत बार, और टीचर भी सिखाते थे, बेटा लेस्ट दिखे ना शुड भर देना, लेस्ट दिखे तो शुड भर देना। अब हम एग्जाम में बैठते थे और क्वेश्चन पेपर में हमें दिखा लेस्ट, बेटे पक्का आता है तो शुड, 1 नंबर पक्का, नंबर तो आ गया, लेकिन क्या इंग्लिश आई। वहां अप्रोच क्या होती थी, फोकस किस चीज पे होता था, टू स्कोर, जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ले इसके वहां फोकस होता था। लेकिन यहां पर फोकस होता है कि इंग्लिश को ऐसे सीखूं ताकि इंप्लीमेंट कर पाऊं कल को मैं, क्या बोला कि कल को मैं इसे इंप्लीमेंट कर पाऊं, इस तरीके से आपको सीखना है। राइट, नेक्स्ट जो डिफरेंस है, वहां एज अ थ्योरी सीखते थे आप, यहां प्रैक्टिकली सीखेंगे। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज जब सीखते हैं तो प्रैक्टिकली सीखते हैं। मैंने अभी आपको मैग्निफिसेंट का एग्जांपल दिया, वो लर्निंग इंग्लिश प्रैक्टिकली। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ फ्लावर, व्हाट अ डिश, व्हाट अ टेस्ट, व्हाट अ कलर, व्हाट अ कार, व्हाट अ बाइक, ऐसे बोल रहे हैं ना आप घर में बैठ के अकेले में पागलों के जैसा। इट इज लर्निंग इंग्लिश प्रैक्टिकली। हाँ, इससे बात बनेगी, थ्योरी सीखने से और उससे बात नहीं बन सकती। राइट, सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट इज, वहां पर आपका फोकस होता है ग्रामर पे, कि आप ग्रामर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना है। हाँ, आप कहोगे सर ग्रामर के बिना इंग्लिश तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मान गया कि ग्रामर के बिना इंग्लिश पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्रामर सीखे बिना इंग्लिश पॉसिबल है। ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, जब आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखते हैं तो इनिशियली यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन कन्वेइंग योर मैसेज। आप मैसेज कन्वे करने पे ध्यान देते हैं, ना कि ग्रामर पे। तो देखिए ये
बेसिक डिफरेंस पहले समझ लीजिए, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और लैंग्वेज। लर्निंग ट्रिक्स लेस के साथ शुड आएगा, ये ट्रिक है। लेकिन लेस्ट होता क्या है, कहां कहां और यूज कर सकता हूं, ये सीख लेना। लर्निंग द ट्रेड यानी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा एक बार आपको, ट्रिक से बात नहीं बनेगी। सेकंड मैंने बताया मार्क्स लेने के लिए नहीं सीखनी है, यूज कर पाऊं, लोगों से बात कर पाऊं उसके लिए सीखनी है। बॉस जब बोले मेल ड्रॉप कर पाऊं बिना किसी से पूछे कि क्या लैंग्वेज लिखनी है। सर्कुलर कोई आया उसको पढ़ करके समझ पाऊं, इसलिए इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज आपको सीखना है, राइट। थ्योरी नहीं सीखनी है, प्रैक्टिकली इसको सीखना है। ग्रामर नहीं सीखनी है, ग्रामर के बिना इंग्लिश सीखनी है, ये बहुत जरूरी है, राइट। सो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, इन दोनों चीजों में अगर डिफरेंस करना सीख गए आप, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट तो आपने 10, 12, 15 साल सीख के देख लिया, एंड यू स्टिल फेल टू स्पीक लाइक 5 लाइन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। 5 लाइन आज भी अगर इंग्लिश में बोलनी पड़ जाए तो प्रॉब्लम है ना। ऐसा लगता है किडनी मांग ली किसी ने, इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, ऐसा होता है। तो आपको करना क्या है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सीखनी है। वो कैसे पॉसिबल होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड से। लैंग्वेज के साथ एक कमाल की बात है, एवरी लैंग्वेज कैरीज 2 थिंग्स। हर भाषा में 2 चीजें होती है। पहला, अ लैंग्वेज कैरीज थॉट, भाषा अपने एक कंधे पर विचार लेकर के चलती है और दूसरे कंधे पर ग्रामर, राइट। बट द गुड थिंग इज पीपल फोकस ऑन योर थॉट और ग्रामर। जब आप किसी भी भाषा में कोई बात बोलते हैं, से इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तो लोग आपके विचारों पर ध्यान देते हैं या आपकी ग्रामर पे। आपने कभी देखा है कोई दुनिया का ऐसा इंसान जो ग्रामेटिकली 100% करेक्ट इंग्लिश बोलता है? विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, क्या ये 100% करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, राइट। बट कभी आपने देखा है कि विराट कोहली का इंटरव्यू चल रहा है कि हाउ डिड यू प्ले द मैच एंड योर परफॉर्मेंस, वो कहता है या द पिच वाज गुड एंड, और बीच में गए रुको रुको रुको, आपने यहाँ पे ना वर्स नहीं इज आएगा, पिच अभी भी वैसी ही है, तो इजमार गलत लगाया सर, आपने यहाँ हैज आना चाहिए था। कभी देखा है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल में कि कोई बीच में टोकता है ऐसे कि आपकी ग्रामर गलत है? इट नेवर हैपेंस। व्हाई? क्योंकि जब आप स्पीड से बोलते हैं ना, तो लोगों का फोकस आपके विचारों पर होता है, थॉट्स पर होता है, लोगों का फोकस नहीं होता आपकी ग्रामर पे। पीपल फोकसेस ऑन थॉट्स नॉट ऑन योर ग्रामर। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, एग्जाम्पल से क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हाँ, एक ये बात जरूर मैं बताना चाहूंगा, क्यों हम इंग्लिश आज बोल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आवर ब्रेन इज आवर माइंड, सॉरी ब्रेन हार्ड पार्ट हो गया, आवर माइंड इज कंडीशन टू लर्न इट विद फियर। हाँ, हमारे दिमाग में इंग्लिश को डर भर करके सिखाया गया है, हम फियरलेस कभी हुए ही नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट सीखते थे, हर वक्त एक डर बना रहता था, इस बार कौन सा क्वेश्चन आएगा, नंबर ना कट जाए, स्पेलिंग ना गलत हो जाए, ग्रामर ना, जैसे ही मेरी ग्रामर गलत हुई नंबर कटेगा, जैसे ही मेरी स्पेलिंग गलत हुई टीचर डांटेंगे। जीवन में नर्सरी क्लास से लेकर के और आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी पढ़ा है, हमेशा इंग्लिश एक डर के साथ सीखी है कि ये गड़बड़ ना हो जाए, यार इसमें हैव आएगा, हैज आएगा, गड़बड़ ना हो जाए। उस डर के साथ आपने 12-15 साल इंग्लिश सीखी है। यस और नो? क्या हमेशा आपको बना नहीं रहता था पता नहीं कौन सा ऐसे आएगा, ये याद करूं वो याद करूं? आपको लगता था इसमें क्या आएगा? अच्छा, फिर ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग इतनी, आपको फिल इन द ब्लैंक देते थे और सारे ऐसे लगते थे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हैं, उसकी कोचिंग जब आप लेते हैं, हर वक्त यही लगा रहता है, ये भी ठीक है, लग तो एट भी ठीक रहा है, ऑन भी ठीक लग रहा है, क्या आएगा? डर बना रहता। कभी मैं एट लगा दूं और ऑन हो सही आंसर, तो डर के साथ जब आप इंग्लिश को सीखेंगे ना, तो मुझे माफ कीजिए, बिल्कुल आप कभी नहीं सीख पाएंगे। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं, नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ये जरूरी है, इट्स एन आई ओपनर। आपकी आंखें खोलना जरूरी है कि क्यों आपको इंग्लिश आज तक नहीं आई और आगे कैसे आएगी। तो इसलिए बी फियरलेस, सबसे पहली जो जरूरत है इंग्लिश सीखने की, आज मैं बता दूं आपको, बी फियरलेस, बिल्कुल फियरलेस। डर दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, होगी जो गलती होगी। जीवन में जो चीजें सीखी है ना, फियरलेस हो गई, सीखी है आपने। स्विमिंग, फियरलेस थे, डूबने से तो रहा, कोच है, सब कुछ है, फ्रेंड है, बचा लेंगे। कुछ लोग हो सकता है डूब भी गए हो, लेकिन जिसने स्विमिंग सीखी फियरलेस होकर के सीखी। जिसके मन में वो डर बना रहा, उसको आज भी स्विमिंग नहीं आती। आपको साइकिल चलानी आती है, फियरलेस आप हो गए थे कि छोटा मोटा गिरूंगा, चोट लगेगी, ब्लीडिंग होगी, कोई बात नहीं, राइट। फियरलेस हुए, साइकिल लेकर के घर से निकले, आज आपको साइकिलिंग आती है। बाइक आपने सीखी, गाड़ी आपने सीखी, कुकिंग आपने सीखी, फियरलेस। आज जला दूंगा, काला हो जाएगा, कोई खाएगा नहीं, गालियां देंगे, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा बनेगा। तो जो भी चीज जीवन में आपने सीखी है, बताइए मुझे, फियरलेस होकर के सीखी है।
और जब आप फियरलेस नहीं थे वो चीज आपको आज भी नहीं आती। सो बी फियरलेस इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक गलत जैसी भी है, कच्ची पक्की टूटी फूटी ब्रोकन इंग्लिश हम उसे बोलते हैं, स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, और बाद में वो ठीक हो जाती है। क्योंकि देखो बच्चे को चलना सिखाया जाता है, दौड़ना वो अपने आप सीख जाता है। हाँ, बच्चे को उंगली पकड़ के पेरेंट्स चलना सिखाते हैं, दौड़ना वो खुद सीखता है। तो आपको भी इंग्लिश में हैंड होल्डिंग सपोर्ट थोड़ा सा चाहिएगा शुरू में, लेकिन फ्लुएंसी फिर धीरे धीरे अपने आप बन जाएगी, अपने आप। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं ग्रामर वाला पार्ट जो मैं कह रहा था, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, उस पे आते हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त के पास ना 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 चलो मैं इंग्लिश से ही करता हूं। माई फ्रेंड हैव अ कार। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? माई फ्रेंड हैव अ कार। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? मेरे दोस्त के पास हाँ कार है। ओके राइट। मैं क्या कहना चाहता हूं? माई फ्रेंड हैव अ कार। मेरे दोस्त के पास कार है। क्या कहना चाहता हूं? मेरे दोस्त के पास कार है। लेकिन एक डायलॉग ये भी तो बनता है, माई फ्रेंड हैज अ कार। अच्छा, अगर मैं बोलूं माई फ्रेंड हैव अ कार, तो आपने क्या समझा मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, माई फ्रेंड हैज अ कार। माई फ्रेंड आपको दिखाई दे रहा है? यस, माई फ्रेंड हैज अ कार। अब आपने क्या समझा? अभी भी तो वही समझा। What is the objective of communication? See, the core objective of communication is to convey your thoughts, your ideas, your message. And if you could like communicate what you wanted to, communication is done. बिल्कुल। पहले केस में भी वही बात आप समझे, दूसरे केस में भी आप बात वही समझे, तो भाड़ में जाए हैज आएगा या हैव आएगा। इनिशियल स्टेज पे बात कर रहा हूं, हैज लगाओ हैव लगाओ, बात अगर मुझे समझ में आ गई तो दैट्स इट, कम्युनिकेशन इज डन। कम्युनिकेशन इज डन। लेकिन अब आप कहेंगे नहीं सर, यहां तो ठीक है, चलो समझ गए, लेकिन फ्यूचर में किसी इंटरव्यू में जाएंगे, कोई बिजनेस डील में हम बैठे होंगे, अगर वहां मैंने बोल दिया माय फ्रेंड हैव अ कार, तो उसको लगेगा इसकी तो इंग्लिश बहुत कच्ची है, हा? बहुत वीक है ये, तब वहां कैसे बात बनेगी, है ना? देखिए, इसका भी सॉल्यूशन आपको देता हूं, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसका सॉल्यूशन है नेक्स्ट स्लाइड में। इंग्लिश के अंदर जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप करेंगे वो दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं। पहली मिस्टेक होती है इजीली नोटिसेबल मिस्टेक, और दूसरी होती है नॉट इजीली नोटिसेबल मिस्टेक। तो आपको करना क्या है, इजीली नोटिसेबल जो मिस्टेक है ना वो नहीं करनी, लेकिन जो नॉट इजीली नोटिसेबल मिस्टेक्स हैं वो आप कर सकते हो। अगर आप सोचो मैं कोई मिस्टेक ना करूं, तो फिर तो बैठे रहो, बोल ली इंग्लिश आपने, you will never be able to speak fluent English। तो easily noticeable और not easily noticeable, अब ये कैसे पता लगे कि कौन सी मिस्टेक हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक easily noticeable है और कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक not easily noticeable है? कैसे पता लगेगा? मैं बताता हूं कैसे पता लगेगा। देखिए, ये दोनों के कुछ एग्जाम्पल मैं डालता हूं। इधर जो लिखा हुआ ना आई एम गो देयर, ये easily noticeable मिस्टेक है। आप फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, ये इज एम आर, राइट? आप अगर बोलते हैं आई वॉज वेंट देयर, लोगों को लगता है माइंड में ना एक इमेज होती है, वाज पास्ट के लिए यूज होता है और सेकंड फॉर्म भी पास्ट के लिए यूज होती है। बहुत सारे लोग दोनों लगाते हैं, आई वॉज वेंट देयर पक्का पास्ट कर दिया, वाज से नहीं समझेगा तो सेकंड फॉर्म से तो समझ ही जाएगा, पक्का पास्ट कर देता हूं, आई वॉज वेंट देयर, आई एम गो देयर, टुडे आई एम स्पीक टू यू। ये इजीली नोटिसेबल मिस्टेक है, इनसे कबाड़ा होने वाला है, फिर गड़बड़ होने वाली है, राइट? एक और एग्जांपल लिखा है, दे विल रीच्ड, विल के साथ सेकंड फॉर्म लगा दी, ये इजीली नोटिसेबल है, कोई भी बड़ी आसानी से पता लगा लेगा और कहेगा ये उल्लू है। लेकिन शुरू में अगर ये भी होता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शुरू में अगर आप ऐसा भी बोलते हैं तो भी कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि इससे भी मैसेज तो कन्वे होता है। अगर मैं बोलूं आई एम गो टू स्कूल, समझ में आता मैं स्कूल जाता हूं, है ना? ग्रामर गलत है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये इजीली नोटिसेबल मिस्टेक है, कोई भी इजीली नोटिस कर लेगा। सेकंड पार्ट पे अगर मैं बात करूं, नॉट इजीली नोटिसेबल मिस्टेक, जिनको आसानी से लोग पकड़ नहीं पाते। ये देखना क्या डायलॉग मैंने लिखा हुआ है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ टीचर, दिख रहा है आपको? वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ टीचर। अब ये इसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कितने लोग पकड़ पाए? मेरा एक दोस्त टीचर है, ठीक तो है ये? नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होता, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक, तो फ्रेंड्स होना चाहिए। बट यकीन मानिए 99% पीपल विल नेवर नोटिस दिस मिस्टेक। वन ऑफ माई फ्रेंड या वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चलेगा, बोलना शुरू करो। नेक्स्ट एग्जांपल हमने कौन सा लिया है? टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज। कितनी बार आपने प्रेजेंटेशन में ये सुना है, टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू? अब ग्रामर के हिसाब से तो ये भी गलत है, इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। जैसे हमें क्या बोलना चाहिए? टुडे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू।
today I'm standing before you to express my views on specific topic, right? तो इन फ्रंट ऑफ यू की बजाय बिफोर सही एक्सप्रेशन है, बट नोबडी वुड नोटिस। और 99% जो लोग फ्लुएंट है इंग्लिश में, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो भी ऐसे ही बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? और लास्ट है आई वाज इन बस। अरे तेरी आवाज नहीं आ रही थी, बहुत शोर आ रहा था, क्या चक्कर था? वो बोलता है आई वाज इन बस, मैं बस में था उस वक्त। ठीक तो है, बस में था, आई वाज इन बस। लेकिन अब ग्रामर का रूल है कि वो बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इन नहीं लगाना, आपने ऑन लगाना है। सही बनता है आई वाज ऑन बस, आई वाज ऑन बस। लेकिन कौन नोटिस करता है और कौन बोलता है, आप बता दो। जितने लोगों को आप जानते हो कि उसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो भी शायद ऐसे ही बोलता होगा आई वाज इन बस। मैसेज कन्वे हो गया। दीज आर नॉट नोटिसेबल मिस्टेक्स। ये वो मिस्टेक हैं जो नोटिस नहीं होती, और इधर जो आपको दिखाई दे रही है ये वो मिस्टेक हैं जो नोटिस होती हैं। अब आपको सिर्फ इतना करना है, जब आप इंग्लिश को शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, कि आप इजीली नोटिसेबल मिस्टेक्स ना करें, आप नोटिसेबल मिस्टेक के साथ शुरू करें, और धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगी। इज इट क्लियर? राइट। अब देखिए, इफ यू कैन चेंज योर माइंडसेट, यू कैन चेंज योर लाइफ। चेंज योर फोकस एंड चेंज योर लाइफ। माइंडसेट अपना बदलिए, फोकस अपना चेंज कीजिए, और आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए, एक सुनसान रोड पर आपकी गाड़ी खराब हो गई। अगर एक सुनसान रोड पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी किस्मत खराब है। एक सुनसान रोड पर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है। इसका मतलब है आपके पास एक कार है। क्या बोला मैंने? इसका मतलब ये नहीं है आपकी किस्मत खराब है, इसका मतलब ये है आपके पास कार है। लुक एट द पॉजिटिविटी। उसकी कार कहां सुनसान रोड पे खराब होगी जो बस में लटका हुआ है? यहां बैग लग रहा है किसी का, अबे इधर कर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर बीच रोड पर गाड़ी खराब हो जाती है इसका मतलब ये नहीं आपकी किस्मत खराब है। लोग पता नहीं क्यों छोटी सी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से, देखो मैंने देखा है, बोला भी जाता है, नेवर लेट अ बैड डे मेक यू फील दैट यू हैव अ बैड लाइफ। दिन कभी कभी खराब हो सकता है। इवन द बिगेस्ट ऑफ द पर्सनालिटी दे हैव अ बैड डे एट ऑफिस। उनका दिन खराब होता है कभी कभी, जो चाहते हैं वो नहीं होता, उसी को हम बोलते हैं आज दिन खराब है। लेकिन दिन खराब है या किस्मत खराब है, जीवन खराब है? लोग कहते हैं मेरा जीवन खराब है, मेरी लाइफ ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है। ना, हो सकता है अब ये गाड़ी खराब हो गई तो ये वो पल हो सकता है थोड़ा खराब हो, वो दिन थोड़ा खराब हो, लेकिन जीवन थोड़ी खराब। आपके पास गाड़ी तो है। उनसे पूछो ना जो तरसते हैं बाइक के लिए भी, आज भी बसेस में, ट्रेन्स में सफर कर रहे हैं। तो देखिए, नजरिया होना चाहिए। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ये कहूं कि मेरी किस्मत खराब है तो फिर ये मेरी मिस्टेक है। तो गाड़ी खराब हो गई तो किस्मत खराब नहीं है, दिन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपके पास एक कार है। अब इसी बात को कनेक्ट कर लीजिए एक बार स्पोकन इंग्लिश से। इफ यू स्पीक ब्रोकन इंग्लिश इट नेवर मीन्स यू आर बैड एट इट, यू आर पुअर एट इट। अगर आप बेकार इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं आपकी इंग्लिश बेकार है। अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ये है, यू नो अ लैंग्वेज, आपको एक भाषा आती है। क्या आप स्पेनिश बोल सकते हैं टूटी फूटी? चलो कुछ वर्ड, नमस्ते, कहां जा रहे हो, कब आओगे, फिंगर को स्पेनिश में क्या बोलते हैं, ये कैसे कलर का ब्लेजर मैंने पहना हुआ है स्पेनिश में, नो आइडिया। बट इंग्लिश में ये क्या है, फिंगर, ये क्या है, कोट, कैसे कलर का है, ब्लैक, हाथ में क्या है, रिमोट, और कम। इसका मतलब क्या है? इफ यू स्पीक ब्रोकन इंग्लिश इट नेवर मीन्स यू आर पुअर एट इट, इट मीन्स यू नो अ लैंग्वेज। तो अगर टूटी फूटी इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश आप बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है लैंग्वेज नहीं आती या लैंग्वेज में खराब है, इसका मतलब ये है लैंग्वेज आती है। थोड़ी और बढ़िया हो जाएगी टाइम के साथ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि इंग्लिश में बी फियरलेस, लर्न इट एज अ लैंग्वेज एंड स्पीक ब्रोकन इंग्लिश। तो अभी तक इस प्रोग्राम में हमने जो कुछ सीखा उसको एक बार सम अप कर देता हूं आज के इस वेबिनार से। पहली चीज जो आपने सीखी वो ये सीखी कि बी फियरलेस। जब तक वो डर बना रहेगा इंग्लिश नहीं आ सकती। इनफैक्ट जीवन की कोई भी चीज आपने फियरलेस हुए बिना नहीं सीखी है। यू गो एंड चेक आउट। नेक्स्ट, डू नॉट लर्न ग्रामर। ग्रामर सीखना बंद करो। डू नॉट लर्न इट एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तौर पर सीखोगे तो ग्रामर में घुसोगे। तो डू नॉट लर्न इट एज अ सब्जेक्ट, लर्न इट एज अ लैंग्वेज। फोकस मत करो ग्रामर पे। मैं बार बार बोलता हूं ग्रामर पे फोकस मत कीजिए। नेक्स्ट इज टू कीप योर माइंड, कीप योर ब्रेन इन इंग्लिश जोन फॉर 2-3 आवर्स। 2 से 3 घंटे अपने ब्रेन को इंग्लिश जोन में रखना है। इंग्लिश जोन क्या है रिपीट कर देता हूं, जहां आप जो कुछ सुनते हो इंग्लिश में सुनते हो, जो कुछ आपको दिखेगा पढ़ने के लिए, कोई किताब है, न्यूज़पेपर है, इंग्लिश में होगा, जो कुछ आपके मुंह से आवाज निकलेगी वो इंग्लिश में। राइट 2 से 2.5 घंटे ऐसे बना लीजिए जब कान में इंग्लिश ही जाएगी, पढ़ूंगा इंग्लिश, बोलूंगा इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश।
कई कह रहे हैं पीऊंगा भी इंग्लिश, ना ना ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस जोन में नहीं जाना है आपको, राइट। इसके बाद है यूज ऑल थ्री टेक्निक, ऑडिटरी, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक। आज किसी चीज को सीखने के 3 पैटर्न सिखाए हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए तीनों ही यूज करने पड़ेंगे। ऑडिटरी कैसे होगा कि भाई इंग्लिश की न्यूज सुननी पड़ेगी, स्पॉट कमेंट्री सब इंग्लिश में सुनना पड़ेगा, साथ के साथ उसे देखना भी पड़ेगा। और काइनेस्थेटिक, वो बार बार आपको रिपीट भी करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे साइकिलिंग में हमने बताया था, स्विमिंग में आपने बताया था हमने कि इनिशियल स्टेज पे शुरुआती दौर में हैंड होल्डिंग सपोर्ट रखिए अपने पास। खुद से सब कुछ करेंगे ना बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अर्ली स्टेज पर ऑलवेज हैव अ हैंड होल्डिंग सपोर्ट। अपना एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कीजिए, एक मेंटर अपना तैयार कीजिए जो आपको सपोर्ट करे इंग्लिश को सीखने में इनिशियल स्टेज पे। लेटर ऑन यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश ऑन योर ओन, अपने आप सीखते हैं बहुत अच्छी इंग्लिश, राइट। एंड नेक्स्ट इज अवॉइड इजीली नोटिसेबल मिस्टेक्स। ऐसी कौन सी, अब मेरे से तो सर ये हो जाता आई एम गो देयर, इसको कैसे इंप्रूव करूं? ये मैंने बताया ना, हैंड होल्डिंग सपोर्ट शुरू में आपको चाहिएगा। जब हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपके पास होगा तो इजीली नोटिसेबल जो मिस्टेक है, आई एम गो, आई शी वाज वेंट देयर, इस तरह की गलतियां आपसे नहीं होंगी। और आपसे अगर गलती होंगी भी तो वो नॉट इजीली नोटिसेबल मिस्टेक्स होंगी, जो लोगों को ध्यान भी नहीं जाता है। क्लियर? तो देखिए इन सब तरीकों को अगर आप लगाएंगे तो यू कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश इन नो टाइम। बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से आप बहुत बढ़िया इंग्लिश सीख सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि ई लर्निंग से सीखिए इसको। आजकल बड़ा ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट बन गया है, कोरोना ने बहुत सारे लोगों को बहुत एक्सपीरियंस दे दिए हैं। मैं बताता हूँ ई लर्निंग की काफी एडवांटेजेस हैं। हमने भी बहुत ज्यादा टाइम तक पहले ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, ऑफलाइन का हमारा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा, लेकिन पिछले 3-4 फैब ऑनवर्ड्स हम ऑन लर्निंग सिखा रहे हैं, फैब ऑनवर्ड्स। तो उसमें हमने देखा बहुत कमाल का हमारा एक्सपीरियंस रहा। क्या कि जो क्लासरूम की एडवांटेज है ना, कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको स्क्रीन दिखाई देती है, प्रोजेक्टर में स्लाइड्स दिखाई देती हैं, वो सब बेनिफिट तो आपको ऑलरेडी अभी भी है कि नहीं? अभी आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है, सब कुछ है। यू कैन रेज अ क्वेश्चन ऑल्सो, टैब पे आप डाल सकते हैं क्वेश्चन, वो आंसर भी होंगे, राइट। दूसरा क्या है, यू कैन रिपीट एंड पॉज। ये भी तो एक बेनिफिट है जो क्लासरूम में नहीं है। उसके अलावा ऐसे बेनिफिट बहुत मिल जाएंगे। आप एक वीडियो से सीख रहे हैं, आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ या आप कुछ लिखना चाहते हैं, पॉज एंड राइट। क्लासरूम में क्या होता है, कई बार टीचर आगे निकल गया, आप अभी लिखते ही रह गए, जब तक लिख करके कंप्लीट किया टीचर ने 2 पॉइंट और क्लियर कर दिए या स्लाइड चेंज हो गई। यहां यू कैन रिपीट और यू कैन पॉज, आप दोबारा भी सुन सकते हैं, आप पॉज भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी हमेशा आपके पास। सेकंड, हाँ इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में कॉस्ट कम आती है, किराया नहीं देने लोगों को सब कुछ, तो यू पे लेस। जैसे स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं अगर बात करूं तो 5 से 6 हजार रुपए चार्ज करते हैं लोग। एक एवरेज फीस 6000 है। किसी भी शहर में जाइए तो 5000 to 6000 इज एन एवरेज फीस। 10, 12, 15 हजार भी लेते हैं लोग, और 3-4 हजार वाले भी मिल जाएंगे शायद आपको, 4 हजार रुपए वाले, लेकिन 5 से 6 हजार मुझे लगता है कि एवरेज फीस है। लेकिन ऑनलाइन में आपको फीस भी कम देनी पड़ती है। प्लस इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू सेव टाइम। अगर जहां आप कहीं ऑफलाइन जाते हैं सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में, और वो आपके घर से आधे घंटे की दूरी पे या 20 मिनट की दूरी पे है, तो आपका आधा घंटा जाने में और आधा घंटा आने में 1 घंटा बर्बाद होता है। क्यों ना उस 1 घंटे तक हम अपने ब्रेन को इंग्लिश जोन में रखें, जो हम ट्रैफिक में रखते हैं, है ना। 1 घंटा अपने दिमाग को ट्रैफिक में रखना सही आइडिया या इंग्लिश जोन में रखना सही आइडिया? 1 घंटे की क्लास के ऊपर आपके 2-2.5 घंटे खराब होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो दूर दराज से आते हैं, पहले बस पकड़ करके या किसी ऑटो से वो स्टेशन तक जाते हैं, फिर ट्रेन पकड़ करके किसी सिटी में आते हैं, वहां वो क्लास अटेंड करते हैं, पूरा पूरा दिन तक लग जाता है। यू सेव लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम आपका बचता है। और यू सेव ट्रैवलिंग कॉस्ट। ट्रैवलिंग में पैसा भी तो लगता है, टाइम तो बचा ही, लेकिन आपने किराया भी तो दिया, आपने स्कूटी में बाइक में तेल भी तो बचाया, है ना। अब मुझे लगता है 30 से 40 रुपए तो हर रोज लगभग आने जाने के लग जाएगा। 100 दिन अगर आप कहीं सीखने के लिए जाते हैं तो 3 से 4 हजार रुपए तो आपकी वो कॉस्ट आ जाती है, आप कभी काउंट ही नहीं करते। आपने 6 हजार रुपए फीस जमा कराई है, 4 हजार रुपए आपने ट्रैवल कॉस्ट लगा दी। अगर 30-40 रुपए भी हर रोज का लगाएं और 100 दिन आप इंस्टीट्यूट पे गए तो 4 हजार रुपए तो यही ना बन जाते हैं आपके। वो पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, और जो थकान ट्रैवलिंग की वो बचती है। इसके अलावा टाइमिंग, कई बार होता है कि आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं टाइमिंग पूछने, और वो टाइम कुछ ऐसा होता है जो आपको सूट नहीं करता, या तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, या आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, उनको टाइम ही नहीं लगता। स्कूल जाती हैं टीचर्स, काफी सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, इवनिंग में आते हैं, वो कहते हैं सिर्फ ये एक स्लॉट हमारे पास अवेलेबल है, इवनिंग में कुछ ट्यूशन भी लेनी होती है सर। हाँ, टीचर्स
ट्यूशन के बिना नहीं रह सकते। कहते हैं ना, अंबानी की सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दे तो उससे ज्यादा कमाऊंगा। कैसे? जितना वो कमा रहा है उतना तो कमाऊंगा, और साथ में शाम को एक बैच ट्यूशन का भी तो लूंगा। टीचर्स ऐसा ही सोचते हैं, दे अर्न लिटिल मोर, हाँ थोड़ा ज्यादा कमाते हैं, राइट। तो देखिए, वो आपको टाइम की पूरी लिबर्टी मिलती है उसके अंदर, जब मर्जी सीखना, पूरे 24 घंटे में से जब आपका दिल करे तब सीखो। गो टू द ऐप, प्ले द वीडियो, जब आपका टाइम लगे, इवनिंग में सीख लो, रात को सीख लो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, सुबह 6 बजे, 4 बजे, रात के 12 बजे, जब आपका दिल करे। तो टाइम का आपको जो है लिबर्टी रहती है, जब मर्जी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड चूज योर कंफर्टेबल प्लेस। घर में आप बैठ के सीखिए, लेट के सीखिए, कोने में बैठिए, छत पे बैठिए, ताजी हवा में, एसी के अंदर, जैसे मर्जी। है तो देखिए, एक प्लेस आपकी मर्जी का हो, टाइम आपकी मर्जी का हो, पैसे आपके कम लगे, ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं आए, ट्रैवलिंग में पैसा नहीं लगे, प्लस आपको रेडीमेड मटेरियल भी तो मिलता है ना, सॉल्यूशंस भी तो मिलते हैं। प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है तो रेडीमेड मिलती हैं आपको, बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं। रोल प्ले, पीटीएम में क्या क्या बोला जाता है, तुरंत जाइए, कल पीटीएम है तो तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए पीटीएम के डायलॉग्स के, मुझे टीचर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, वहां जाकर के बोलिए उसको। कितने ज्यादा प्लस पॉइंट्स हैं। तो मुझे तो ऐसा लगा कि इतने सालों से हमने काफी कुछ खो दिया कि जो हम ऑनलाइन नहीं करा पाए, लेकिन अब जब स्टार्ट हो गया है, फैब, मार्च, अप्रैल और मई, अब लगभग 4 महीने हो गए हैं, 500 से ज्यादा लोगों को सिखा चुके हैं और बहुत कमाल के रिजल्ट मिले हैं। हमारे स्टूडेंट्स हमें ना अपनी परफॉर्मेंसेस रिकॉर्ड करके भेजते हैं। नेक्स्ट कभी आप आएंगे तो मैं वो वीडियो भी आपसे शेयर करूंगा कि उन्होंने रिकॉर्डिंग जो हमें भेजी है, कितनी कमाल की परफॉर्मेंसेस निकल करके आई हैं। ये उस बात का सबूत भी है कि कितने अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं आप ऑनलाइन सीखने के, राइट। तो देखिए, यहां तक तो ये प्रोग्राम था सभी के लिए, लेकिन इससे आगे इट इज only for those who are committed to learn। इससे आगे का प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो चाहते हैं कि मुझे सीखना है। क्योंकि जैसे बिंद्रा जी बोलते हैं ना, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको तो वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश पे कमांड चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए कुछ भी करके, तो आप इससे आगे का प्रोग्राम देखिए, अदरवाइज स्विच ऑफ एंड गो बैक, रिलैक्स। इससे आगे का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए है एंड हु आर कमिटेड टू लर्न, जो सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, डिटरमाइंड हैं, उनके लिए आगे का प्रोग्राम। देखिए, यहां हम ऑफर कर रहे हैं आप लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट। प्रॉब्लम यही है कि इजीली नोटिसेबल मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए, कौन कौन से डायलॉग हैं, कैसे हैं, तो हम ऑफर कर रहे हैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट। जो वो साइकिल पीछे से कोई पकड़ के भागता है ना, हम वो आपकी उंगली पकड़ने के लिए तैयार है। यहां हम आपको क्या करेंगे, हम आपको टेक्निक्स बताएंगे जहां आप इजीली नोटिसेबल मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे। कुछ क्लासेस देंगे हम आपको ऑनलाइन, जिससे आपकी कभी भी इजीली नोटिसेबल मिस्टेक्स नहीं होंगी। इसके अलावा 5000, पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि 5000 कॉमनली यूज सेंटेंसेस। इंग्लिश को अगर सीख रहे हैं ना, हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर 5000 ऐसे डायलॉग बनाए हैं जो रिपीट वही होते हैं, बार 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 बार। इससे बाहर कोई इंग्लिश नहीं, आप कोई भी डायलॉग बोलिए इन 5000 डायलॉग्स में होगा। तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट में हम आपको वो 5000 सेंटेंसेस हिंदी में, इंग्लिश में, वोकैब के साथ सब बना करके देते हैं। पहले आप खुद बनाइए, नहीं बनते तो हमारी मदद लीजिए, डाउनलोड कीजिए, सब कुछ वो सब रेडीमेड डायलॉग्स आपको सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे और वो फिर आपके पास रहेंगे भी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा 100+ वीडियोस का ये प्रोग्राम हमने एक बना दिया है कि 100 से ज्यादा ऐसी वीडियोस हैं इसके अंदर जिनको बार बार सुनिए, उसके बेस पर प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं वो कीजिए, और फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस की टेक्निक बताई है कि अब आपने सीख लिया, फिर उसके असाइनमेंट आपने रिटन इंग्लिश में कंप्लीट कर ली, अब स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी हमने उसके अंदर डाला हुआ है, राइट। 200 से ज्यादा लगभग हम कॉमनली आस्क क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक 70% कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसरिंग देम। क्वेश्चन आंसर ही तो होती है कन्वर्सेशन, और होता क्या, आप पीटीएम में जाएं, क्या बातचीत होती है, बच्चा कैसा चल रहा है, इतने नंबर कम क्यों आए, शरारत तो नहीं करता है, इसके पीछे कौन बैठता है, हाँ टीचर भी पूछता है घर पे मेहनत करता है नहीं करता है, कौन पढ़ाता है, कितने बजे सोता है। तो क्वेश्चन आंसर ही। आपको कोई फ्रेंड मिल जाए मार्केट में, आप क्या बातचीत करोगे उससे, अरे यहाँ कैसे, क्या खरीदने आए थे, कितने दिनों बाद मिले हो, क्या कर रहे हो आजकल, सब क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। हमने देखा कि 200 ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली बोलने ही पड़ते हैं, तो वो क्वेश्चन और उनके आंसर हमने अलग से बना लिए हैं, उनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल बी गुड इन दैट। 20+ हमने रोल प्ले इसके अंदर तैयार कर दिए, जैसे सिचुएशन बेस्ड पीटीएम,
आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी स्कूल कॉलेज कंपनी में, स्कूल कॉलेज में आप जाते हैं एडमिशन के लिए, कंपनी में आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, या किसी डील के लिए कोई आप बात करना चाहते हैं, एचआर से कोई मीटिंग है आपकी, या प्रोडक्शन हेड से कोई मीटिंग है आपकी, तो ऐसे जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बेस पर हमने रोल प्ले तैयार कर दिए हैं, राइट? तो उनको अगर आप एक्सेस करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। तो ये पहला ऑफर है कि ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो अगर आपको ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, नंबर हमारा ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन वेट, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, इसके अलावा आज हम कुछ बोनस देने के मूड में भी हैं, राइट? आज के लिए एक ऑफर हमारा ये भी है कि अगर आप ये हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको बोनस भी मिलेगा। बोनस क्या है? फेसबुक कम्युनिटी की मेंबरशिप हम आपको देंगे। एक फेसबुक पे कम्युनिटी हम बना रहे हैं, उसमें हम आपको भी इन्वॉल्व करेंगे, जहां यू कैन हैव कॉन्वर्सेशन विद इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। उस कम्युनिटी का आप हिस्सा बनेंगे एंड यू कैन इंटरेक्ट विद पीपल, उनकी वीडियोस देखिए, उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, अपनी खुद की वीडियो वहां पोस्ट कीजिए, तो वो एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सो सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश। आप कहते हैं ना मेरे रिलेटिव नहीं बोलते, मेरे पेरेंट्स नहीं बोलते, नेबर्स नहीं बोलते, मेरी कम्युनिटी में कोई नहीं है जो इंग्लिश बोलता है, तो यहां हम आपको वो कम्युनिटी भी प्रोवाइड करेंगे वेयर पीपल सी। मैं नहीं कहता कि सब बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि आप जैसे बिगिनर्स हैं सब, हाँ, लेकिन सब वो लोग हैं जो कमिटेड हैं सीखने के लिए और इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा 5000 सेंटेंसेस डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको हम देने के लिए तैयार हैं, राइट? आज ये बोनस आपको मिलने वाला है कि 5000 सेंटेंसेस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऐसे देखा जाए तो 1000 से ज्यादा डायलॉग्स हो गए, राइट? वो सब आपको मिल जाएंगे यहाँ से। 100+ वीडियोस पे एक बोनस आज के लिए क्या है कि डबल एक्सेस। डबल एक्सेस क्या है? जितने भी हमारी वीडियोस हैं यू कैन प्ले द वीडियो ट्वाइस। जी हाँ, एक बार देखने से नहीं होता। एक बार आपने प्रोग्राम कर लिया, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको लगता है थोड़ा सा भूलने लग गया, पूरा प्रोग्राम आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। एक फीस में 2 बार इस प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। जी हाँ, तो डबल एक्सेस आज के लिए है। आज इवनिंग तक जितने लोग इस प्रोग्राम को ऑप्ट करेंगे उनको हम डबल एक्सेस आज देने वाले हैं। नेक्स्ट है 5 लाइव डाउट क्लियरिंग और इंटरेक्टिव सेशंस हम आपको देंगे। 5 बार हम लाइव आएंगे और 5 बार लाइव आकर के सिर्फ उन लोगों से बात करेंगे जो हमारी फेसबुक कम्युनिटी के मेंबर हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमिटेड हैं सीखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो 5 टाइम्स आई विल बी मीटिंग दोज पीपल लाइव, फेस टू फेस, और उनसे बात करेंगे, जहां हम आपके सभी क्वेश्चन, डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज, बिल्कुल आप में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो 20+ रोल प्लेज, उनको हम प्रैक्टिकली कम्युनिटी में जरूर प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये एक बोनस आपको मिलने वाला है अगर आज आप हमारा ये प्रोग्राम लेते हैं तो। अब सवाल उठता है, सर इस प्रोग्राम के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, है ना? मैं कहता हूं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक तरीके से देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया, अगर आप 100 दिन किसी इंस्टीट्यूट में सीखने जाते हैं और 30-40 रुपए भी अगर आप लगाते हैं कन्वेंस में आने में, जाने में, रिक्शा में, बाइक में, बस में, तो बस उतने पैसे में तो आप प्रोग्राम कर सकते हो, वहां फीस तो आपको देनी ही नहीं है, राइट? चलिए अब मैं बता देता हूं आपको, ओनली फॉर दोज हु आर कमिटेड टू लर्न। अब हमने क्या कर दिया है, हमारे इस प्रोग्राम की जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है वो है 3500, 3500 रुपए हम चार्ज कर रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन अगले 10 मिनट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे कूपन कोड ले सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन ओपन रहेंगी। इन नेक्स्ट 10 मिनट्स आप हमें मैसेज कीजिए हमारे फोन नंबर पे जो ऊपर दिखाई दे रहा है, 8053053010, 80 530 530 10। इस नंबर पे तुरंत अपनी रिक्वेस्ट भेजिए और हम आपको एक कूपन कोड देंगे। जब आप ये प्रोग्राम बाय करेंगे तो वो कूपन कोड होगा पूरे 500 रुपीज का, और आपको नेट पेमेंट जो करनी है वो करनी है 3000। और वो सारे बोनस जो फेसबुक कम्युनिटी के मेंबर आपको बनाएंगे, 5000 सेंटेंसेस रेडीमेड आपको मिल जाएंगे, राइट? वो सब फैसिलिटी भी मिलने वाली है आपको। तो 3500 हमारी इसकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट 10 मिनट में हम टाइम नोट करते हैं, ठीक 11 बजे हैं अभी, तो 11:10 तक आप हमें टेक्स्ट कीजिए और अपना कूपन कोड मंगवा लीजिए। वो कूपन कोड हम आपको भेजेंगे। जितनी रिक्वेस्ट हमें अगले 10 मिनट में रिसीव होंगी, कूपन कोड सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, ठीक है? हाँ, जो बोनस है वो शाम तक ओपन है, लेकिन शाम तक फीस 3500 रुपए लगेगी। बोनस फिर भी मिलेंगे सारे। बोनस पूरे दिन के लिए हैं, लेकिन ये 500 रुपीज का कूपन अगली 10 मिनट के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये पूरा प्रोग्राम आपको करना है, यू आर कमिटेड टू लर्न, तो आप अभी रिक्वेस्ट भेजिए, उसमें लिखिए कूपन रिक्वेस्ट
अपना नाम और अपना नंबर, राइट। नंबर वैसे भी आएगा आपका, लेकिन फिर भी वहां लिख दीजिए अपनी ईमेल आईडी, नंबर और कूपन रिक्वेस्ट, ये 3 चीजें टाइप कीजिए और हमें भेज दीजिए 80 530 530 10 इस नंबर पर, ताकि हमें आपका कूपन कोड उसी नंबर पे हम भेज सकें और आपके मोबाइल ऐप में भी वो सीधा भेज देंगे हम लोग। तो वहां से जब भी आप ये प्रोग्राम खरीदेंगे तो आपको 3500 नहीं, आपको सिर्फ 3000 रुपीज पे करने हैं, और ये सारी चीजें डबल एक्सेस, 5000 सेंटेंसेस, फेसबुक कम्युनिटी की मेंबरशिप सब फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ मिलने वाली है, राइट। तो जल्दी कीजिए। मैंने कहा था कि आगे का प्रोग्राम उन्हीं के लिए जो कमिटेड हैं, जो सीखना ही चाहते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जैसे ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक पैटर्न पे बात की है, ऐसी बहुत सारी कमाल की टेक्निक मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जिनसे आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होती चली जाएगी, राइट। तो जल्दी कीजिए, विद इन 10 मिनट्स, हाँ अब तो 8 मिनट्स, राइट, 7 से 8 मिनट बचे हैं, इसमें आप अपना कूपन मंगवा लीजिए। और अगर आपको करना ही है, सीखना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो वेरी क्विकली इट्स योर चांस, डू इट नाउ, राइट। तो ऐसे ही और अच्छी वेबिनार्स के साथ आपसे फिर फ्यूचर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।